Good morning, everybody. Welcome back to the lecture. So yesterday we have started with direct and indirect speech, and we were doing the rules of direct and indirect speech. We have done till our rule number 3, where we have talked about past tense and future tense, and we have also covered change in direct and indirect speech with respect to present tense as well as with respect to our reporting verb. So I've told you how to make a chart and how to learn these rules. So let's start with our next rule, which further have 3 sub rules. So rule number 4. So in this, we will see how we will change our direct speech to indirect speech with respect to interrogative sentences. So let's start with it. So as our sub rule number 1 states, it states that no conjunction is used if a sentence in direct speech begins with a question, as the question word itself acts as a joining clause. अब देखो इसमें क्या है, whenever there is any kind of question or whenever we attempt any question now, so what we get how. Just give me, yeah. So first thing with that we attempt is we have how or when, where. All these are what? All these are वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस को स्टार्ट करने में हमें हेल्प करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंजंक्शन, जब हमारे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है उस पॉइंट पे, at that point of time what we do, we don't use the conjunctions. I have told you what are conjunctions. दो particular statements को join करने के लिए जो words use होते हैं, for example but, because, therefore, all these are what? All these are our conjunctions. So what it states, whenever you will get a question statement, whenever you get an interrogative statement, at that point of time, जो word है जिससे वो question हमारा बन रहा है, for example, where have you been? तो यहाँ पे क्या है? Where है हमारा. Okay, हमारे पास question में word क्या है? Interrogative word it is where, या फिर how did that happen? तो यहाँ पे क्या है? How है. So the statement, the rule states कि whenever you will have such question words, so यहाँ पे conjunction की जगह conjunctions की जगह हम उस question word को use करेंगे. There is no conjunction used. यहाँ पे क्या लिखा है? No conjunction is used. अगर एक sentence begin करता है किससे? Question से. What, when, where, as the question word itself act as what? It itself act as a joining clause. ये जो question word है हमारा what, when and where, this will itself act as a joining clause. Now let's see. यहाँ पे हमारा example है. Let's see this. The direct statement states, where do you live? Ask the boy. The boy asked what? That where do you live? तो question हमारा ये है, where do you live? अब अगर हम इसको indirect में convert करना पड़ेगा, तो यहाँ पे question है. तो question में वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है, inquire कर रहा है. तो यहाँ पे हमारा asked किस में convert हो जाएगा? The very first thing is, जो हमारा asked है, अगर वो क्वेश्चन इंक्वायरी से रिलेटेड है तो वो इंक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे हम देखो उसी अकॉर्डिंग जैसे हम अपने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे. वेयर डू यू लिव? अब एज पर द रूल स्टेट्स व्हाट? क्वेश्चन वर्ड विल इटसेल्फ एक्ट एज अ जॉइनिंग क्लॉज. तो द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव. किससे पूछ रहा है? जो स्पीकर है, जो हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में वो चीज बता रहा है, उससे पूछ रहा है बॉय कि वेयर डू यू लिव. तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जब वो किसी और पर्सन को यही सेम चीज बताएगा तो व्हाट ही विल से, दैट बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव. ओके, दैट बॉय व्हाट ही डिड, ही इंक्वायर्ड वेयर आई लिव. तो दिस इज हाउ हम अपने इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो यू कैन अगेन मेक द डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्ट. इस तरह से कॉलम में बना लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड फर्दर राइट डाउन सब रूल नंबर 1. हेडिंग डाल देना इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स, जैसे अभी तक पुराना किया है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स. सब रूल नंबर 1 व्हाट? क्वेश्चन वर्ड व्हेन वी हैव क्वेश्चंस. ठीक है, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चन है तो क्या? देयर विल बी नो कंजंक्शन इन आवर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, एंड विद दिस व्हाट वी डू, we add our question word as joining clause. Make it as short as you can.
Okay, now let's move forward to our second. The second rule states what? Second rule states that if a direct speech sentence begins with an auxiliary or helping verb, अगर helping verb के साथ में हमारा direct speech sentence जो है वो begin हो रहा है, then the joining clause should be if or whether. अगर हमारा helping verb के साथ, helping verb, I have told you many times what are auxiliary verb and helping verb. So let me know down in the comment what are helping verb and auxiliary verb, and I'll respond back on the same. So it states कि अगर जो हमारा direct speech sentence है वो begin हो रहा है किससे? Auxiliary verb या helping verb से, तो जो हमारा joining clause बनेगा यहाँ पे, the sentence जो हम अपना comma inverted comma को हटा के लगाएंगे, joining clause, दोनों को join करने वाला clause is joining clause. अब उस joining clause में हमारा या तो if लगेगा या फिर whether. The joining clause will be what? Either it will be if or it will be whether. So you can write down as our sub rule number 2. If sentence begins, to write down sentence begins with auxiliary verb. This is in the direct sentence. Now indirect में you can write joining clause will be if oblique whether. इतना शॉर्ट आपको लिख के बस वही याद रखना है. अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है हमारे पास direct statement states she said comma inverted comma will you come for the party. She said comma inverted comma will you come for the party. ठीक है, quotation closed. अभी indirect statement में जब हमें यही करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो she asked हो जाएगा comma inverted comma की जगह. यहाँ पे जो हमारा joining clause है हमने क्या बताया? If or whether we would come for the party. Full stop. ओके यहाँ से हमने क्या किया, अपने इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को एक नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया. वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड. एंड द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे देखो जॉइनिंग क्लॉज हमारा क्या हो गया, इफ और वेदर. सिमिलरली अगर ये हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में होता, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब स्टेटमेंट, ये सब वर्ड्स होते हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव टू डू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो जॉइनिंग क्लॉज था, जॉइनिंग क्लॉज हमारा क्या होता, हमारा क्वेश्चन वर्ड ही हो जाता. ओके अब अगर यहाँ पे आता शी सेड, जस्ट रिमूव दिस शी सेड. अभी यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन होता व्हेन विल यू कम फॉर द पार्टी, शी आस्क्ड. ओके सो नेक्स्ट थिंग इज, अब जब हम उसको चेंज करते हैं अपने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में, दिस इज आवर डायरेक्ट स्टेटमेंट. वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस. द डायरेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, when will you come for the party. When this is our direct statement, and then what is, she asked. This is the question. Now when we have to convert this into the indirect statement, now she inquired हो जाएगा कि वो क्या कर रही है, पूछ रही है, इंक्वायरी कर रही है. She inquired when will I come for the party. When will I come for the party. अब ये हमारा इंटेरोगेटिव से हमने कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल स्टेटमेंट पे. हमारा क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड था हमने उसी को एज जॉइनिंग क्लॉज यहाँ पे यूज किया. ओके आई होप दिस इज क्लियर. If you have any doubt with respect to this, post it down. Now next is, now third statement states reporting verbs such as said oblique said to, they changes to what, inquired, asked or demanded. अब ये हमको पता कैसे चलेगा इंक्वायरी है, आस्क्ड है या डिमांड किया हुआ है. इट इज जस्ट जो हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है. अब देखो ये तो हम क्वेश्चन को देख के पता कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर चीज को रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम को रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये इस सब टॉपिक से है. सिमिलरली जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमें आराम से पता चल जाएगा कि उसमें इंक्वायरी की बात हो रही है, उसमें वो कुछ पूछ रहा है या फिर वो कुछ डिमांड कर रहा है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स.
जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर said है या said to है, in interrogative statements we mostly change into what? We change it into inquired, asked or demanded with respect to कि वो हमारे further statement में question में क्या पूछ रहा है. Now let's see this example. It states that he said to me, what are you wearing? He said what? He said to me, what are you wearing? This is the very first thing. अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, he is asking. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? He asked me what I was wearing. He asked me what I was wearing. अब what हमने joining clause की तरह यूज किया. said oblique said to होता तो हमने किसमें? ask में convert कर दिया. Okay. Similarly, अगर ये किसी formal, most of the times now what happens, if there is anything which is in a formal form, जैसे कि कोई ऑफिस की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे हम मोस्टली क्या यूज करेंगे? whenever it is formal we use what? Inquired. You have to keep this in mind. Whenever it is formal we have to use what? We will use inquired. Okay, I hope this is clear. तो अभी हमने किया अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. उसमें हमारे पास 3 सब रूल्स थे. पहला हमने पढ़ा कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो हमारा जॉइनिंग क्लॉज के फॉर्म में एक्ट करेगा. क्वेश्चन वर्ड विल टर्न इनटू व्हाट? जॉइनिंग क्लॉज. सेकंड, वी हैव रेड कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस बिगिन हो रहा है तो उसमें जो जॉइनिंग क्लॉज क्या होगा? इट विल बी इफ और वेदर. इधर इट विल बी इफ और इट विल बी वेदर. अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेट्स की जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सच एज said oblique said to, अगर वो है हमारे पास तो हम जब उसको चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स को, जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डू इज when we have said and said to, हम उसको 3 फॉर्म्स में चेंज करेंगे. if the question is informal something या फिर उसमें कुछ इंक्वायरी हो रही है we will use inquire. if it is a general statement where a person is asking the other person something we will use asked. or if it is demanding something then we will use what? Demand. when we will solve the questions tomorrow of this particular chapter I'll explain these in detail over there as well, because question attempt करने के बाद ही you guys will get a hang of it. Now next is our rule number 5. अब rule number 5 states what? कि जो हमारा direct to indirect speech conversion है तो उसमें models कैसे change होंगे? models हमारे क्या हैं? can है, could है, might, may, all these are what? all these are our models. तो it states what? कि जब हमारा direct speech को हम indirect में convert करेंगे तो अगर हमारे statement में what we have, if we have models in our statement at that point of time हम उसको कैसे change करेंगे? Now let's see. The first one states while changing direct speech to indirect speech, direct speech को जब हम indirect में change करेंगे, model used in the sentences changes like. अब जो हमारे sentence में हम model use कर रहे हैं, let's see how the changes. The very first thing is can becomes could. If we have can, it can turn into could. Can अगर हमारे statement में होगा, that is in this example you can see direct statement says she said she can dance. अब अगर हम इसको indirect में change करेंगे तो she said comma inverted comma हटा, हमारे पास that हमने use कर लिया. she said that she can dance का क्या हो जाएगा? she could dance. तो can को हमने किस में convert कर दिया? could में. अगर हमारे पास may है, she may dance होता तो may किस में convert हो जाता? might में. Similarly अगर हमारे पास must है, must किस में कन्वर्ट होता? इट बिकम्स टू had to और would have to. दो तरह के फॉर्म्स में must हमारा कन्वर्ट हो सकता है. एंड दिस must क्वेश्चन इट इज वेरी रेयर. इट इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो. must हमारा कन्वर्ट होता है had to oblique would have to. तो you have to select one statement because many a times यहाँ पे must वाला question होगा, direct sentence will make sense, but in direct sentence you will again find like this statement is incorrect. At that point of time what you have to do is आपको उस indirect statement में क्या करना है? आपको directly see करना है कि कहाँ पे आपके पास had to and would have to है, and you will just select that option. I hope this is clear. So you can write down in this form कि अगर हमारे पास change in models है, ठीक है,
कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म, एक चार्ट बनाओ और फिर उसको इस तरह से लिख लो। सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चार्ट बनाओ। कैन है तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे को हम माइट में कन्वर्ट करेंगे, एंड मस्ट को we will convert it into what? Had to oblique would have to. I hope this is clear. ये हमारा direct statement है and this is our indirect statement. Okay. Now let's see some of the examples. अब example number 1 में it states what? Direct statement में अभी हमने discuss किया. She said that she can dance. This is our statement. She said, comma inverted comma, she can dance. वही अगर हमें इसे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा तो वी नो इंस्टेड ऑफ दिस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट वी यूज दैट। कैन की जगह पे हमने पढ़ा क्या यूज हो जाएगा? कुड। शी सेड दैट शी कुड डांस। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, शी सेड आई मे बाय अ न्यू ड्रेस। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मे बाय अ न्यू ड्रेस। इसकी जगह पे क्या दैट यूज कर लेंगे। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट स्टेट्स शी सेड दैट शी माइट बाय अ न्यू ड्रेस, क्योंकि मे का कन्वर्जन किसमें है? माइट में। ओके, I hope this is clear. See, there are a lot of rules. There are a lot of rules. You have 8, 9 rules, and they further have 4 to 5 sub rules. Minimum 3 sub rules in every topic, in every rule you have. So the best thing is you can just practice the most important rules. For example, this can and could. I'll make you mark it at the end of the lecture that which one are the important rules, because जब आप प्रैक्टिस करोगे then at that point of time आपको मोस्टली रूल्स तो you will get in a habit of using them. Okay, आप एक दो बार प्रैक्टिस करते करते यू नो कि कहाँ पे आपको इंक्वायर लगाना है, कहाँ पे दैट लगेगा, कहाँ पे कैन की जगह पे कुड लगेगा. सो ऑल दिस इज प्रैक्टिस. Only if you practice it, then only you will understand it. And some of the important rules I'll make you mark in the end of the lecture. So now let's move forward. So next rule states what? It states that there are models that do not change. अब कुछ models हैं जो change नहीं होंगे. अभी हमने पढ़ा था कि हम can को could में change करेंगे. Can को किस में change करेंगे? Could में. Shall को should में. But what happen अगर हमारे पास ये वाले मॉडल्स आ जाए जिनको हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे? What happen if we get the models जिसको हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल we get could, would, should, ये जो हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट किया है, अगर हमारे पास यही सेम मॉडल्स अपने डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में आ जाए, okay, if we get these models in our direct statement, at that point of time what we will do, there will be no change. There will be no change. सिर्फ आप यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाओ, द होल स्टेटमेंट विल रिमेन सेम. ओके, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में फर्स्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट स्टेट्स शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस. शी सेड व्हाट? आई शुड क्लीन द हाउस, कोटेशन क्लोज्ड. अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में जब यही आएगा तो व्हाट वी विल डू इज शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वी हैव दैट, आई की जगह पे भी विल यूज शी, क्योंकि जो भी हमारा क्या होता है स्टार्टिंग में जो भी हमारा प्रोनाउन है हम वही यूज करते हैं. दैट शी शुड क्लीन द हाउस, फुल स्टॉप. लेट्स सी, देखो अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे शुड था तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज कि शुड को हम शैल में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं, हम सिर्फ शैल में माइट इनको कन्वर्ट करेंगे. विल, शैल, मे, माइट, नॉट माइट, कैन, हम इनको कन्वर्ट करेंगे. मे को हम माइट में कन्वर्ट कर देंगे, कैन को हम कुड में कन्वर्ट करेंगे, विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे, एंड शैल को शुड में कन्वर्ट करेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. शैल विल बी कन्वर्टेड टू शुड. अब व्हाट हैपन अगर हमारे पास ये वाले मॉडल्स आ जाए शैल, शुड, माइट, ought to and would, there will be no change. So you can
राइट इट डाउन कि इफ वी हैव मॉडल्स जिसको हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम आर डायरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि कैन में इन सबका ऑपोजिट हो जाता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डू, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट में वही सेम मॉडल्स हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डू, देयर विल बी नो चेंज इन आर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, वी विल राइट देम एज इट इज, एज दे आर. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन. अभी तक हमने इतनी बार कर लिया कि प्रोनाउन तो समझ आना ही चाहिए, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट रूल से लेके अभी तक हमारे रूल नंबर 5 तक हम बार बार प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं. प्रोनाउन को हम कैसे चेंज कर रहे हैं? सी, अगर एक स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो देयर, क्लोज्ड, ठीक है, कोटेशन क्लोज यहाँ से हमारा. अब यहाँ पे देखो, शी सेड आई विल गो देयर. अब यहाँ पे जब यहाँ पे आई विल गो देयर है, अगर हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट किससे हो रहा है? डायरेक्ट स्पीच में हम जो बोलते हैं, इट इज एग्जैक्टली द सेम वर्ड जो उस पर्सन ने बोला है. इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं. अब यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, बिकॉज शी इज सेइंग इट बाय हरसेल्फ. अब शी सेड आई विल गो देयर, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो शी सेड दैट, आई हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शी में, क्योंकि है हमारा क्या है, दिस इज आवर प्रोनाउन रूल. अभी तक हम यही सेम चीज करते आ रहे हैं कि अगर कहीं पे आई है तो वहां पे क्या हो जाएगा? शी. जो भी अगर यहाँ पे ही होगा तो यहाँ पे ही हो जाता. ओके, अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे दे हो जाता. ठीक है, दे सेड दे विल गो देयर, तो दे सेड दैट दे विल गो देयर, वैसे कन्वर्ट हो जाता. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखो हम रूल वाइज अपना चेक करते हैं. फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट द फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच. जो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन कौन है? आई. ये किस अकॉर्डिंग चेंज होता है? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच. की स्पीच का हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग क्या होगा? वो चेंज होगा. जैसे कि he said I am in class 12. ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में है, he says that he was in class 12. यहाँ पे that आ गया और I की जगह पे क्या यूज हो गया? he. अब सेकंड में देखो, यहाँ पे है हमारा the second person of the direct speech changes as per the object of reporting speech. जो सेकंड पर्सन है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, वो कैसे चेंज होता है? चेंजेस एज पर दी ऑब्जेक्ट. अब देखो एग्जाम्पल इसमें क्या बोल रहा है ये. She says to them, you have done your work. She says to them, comma, inverted comma, you have done your work. अब सेकंड पर्सन हमारा ये है, you. ये किस फॉर्म में चेंज होगा? एज पर दी ऑब्जेक्ट. them, तो यहाँ पे क्या है? she tells them that they have done their work. them है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? that they have done their work. okay, तो उस फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे. so only thing you have to keep here in mind is कि whenever we talk about first person, वो हमारे किसके? सब्जेक्ट ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेकंड पर्सन, वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, शी सेज टू देम, तो she tells to them that they have done their work. okay, यहाँ पे you से किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? they में. pronoun is quite easy. so what you can expect? You can expect question from such questions of such kind. Such kind of questions you can expect. You can easily get 1 to 2 questions from such topics. now let's move forward. अब हमारी बात हो गई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन. अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं मतलब कि एक इंसान है, वो किसी दूसरे इंसान के बारे में बता रहा है किसी और इंसान को. ठीक है, तो थर्ड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज. वो क्या? वो चेंज नहीं होता है. अब देखो यहाँ पे है, जैसे कि डायरेक्ट में वो बोल रहा है, he says she dances well. वो बता रहा है किसी और के बारे में कि वो बहुत अच्छा डांस करती है. अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, he says that she dances well, तो यहाँ पे क्या हुआ? there is no change. instead of this
ये तो आपको रिमूव करना ही है अपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। अगर आप इसको लगाओगे अपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अगर आप लगाओगे तो वो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही रहेगा ना। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ओनली थिंग यू विल गेट इज दैट। तो यहाँ पे जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे देयर विल बी नो चेंज। Apart from what? Apart from this. When I say no change, it doesn't mean ना कि उसका we will not even remove comma inverted comma. So when I say no change, just keep this in your mind that only we have to change this. Otherwise, the whole sentence will remain same. Okay. There will be no change in our statement apart from this comma and inverted comma. जिसको remove करके हम हर बार क्या लगाते हैं? That. Okay. Now let's move forward to our rule number 7. अब rule number 7 states what? जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज रिक्वेस्टिंग, कमांडिंग, विशिंग या फिर एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है या फिर एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर व्हाट? व्हिच हैव एक्सक्लेमेशन साइन। दिस इज योर एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, तो इट स्टेट्स व्हाट कि जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस बेसिस पे, वेदर इट इज अ रिक्वेस्ट, वेदर इट इज अ कमांड, whether it is a wish or the statements end with an exclamation. Now let's see. Indirect speech is supported by some verbs like requested, ordered, suggested and advised. अभी तक हमने इतनी बार देखा कि हमेशा indirect speech में हम कुछ ना कुछ ऐसे verbs हैं जो support करते हैं। For example, हमने पीछे देखा था enquired, ठीक है, demanded। तो हमेशा जो हमारा indirect speech है वो किसी ना किसी इस तरह के verb से क्या होता है, support होता है, जो सपोर्ट किया जाता है, जो कि किस फॉर्म में एक्ट करता है। तो वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कुछ ऑर्डर कर रहा होता है, कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, फिर कुछ एडवाइस कर रहा है। अब देखो जो फॉरबिड एंड फॉरबिड जो हम यूज करते हैं, इफ वी यूज फॉरबिड एंड फॉरबिड वी यूज देम फॉर व्हाट? फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। Therefore the imperative mood in the direct speech changes to infinitive in indirect speech. तो जो हमारा वो होता है स्टेटमेंट का सेंस होता है वो imperative mood से infinitive mood की तरह चेंज हो जाता है। When we have discussed sentences, we have discussed these imperative sentence and infinitive sentences. Let me know, because I will not explain it in each and everywhere ना। So जब हम उसको चेंज करेंगे तो हम let's see some of the examples कि किस तरह से वो चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे है प्लीज कंप्लीट इट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, वहां पे डिमांड कर रहा है। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे तो वहां पे क्या होगा? हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर्म होगा या डिमांड फॉर्म होगा। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में सपोर्ट किया जाता है। जैसे शी आस्क्ड, हम कभी नहीं बोलते ना उसको हम बिना आस्क्ड के या सेड के या एनक्वायर्ड के, डिमांड के हम यूज नहीं करते। हम अपना इनडायरेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट ही इसी फॉर्म में करते हैं। So this is what this statement states कि जब भी आपके पास कोई इसी तरह का क्वेश्चन आएगा you have to use what? ये जो set to है जो उस क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे कि प्लीज कंप्लीट इट, प्लीज जहां पे यूज हो जाता है वहां पे इट्स फॉर्म ऑफ व्हाट? इट्स फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो इसने बोला है she said to her प्लीज कंप्लीट इट, तो प्लीज क्या है? वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है। तो जो हमारा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो किस तरह से होगा? द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट विल बी she requested her to what? To complete it. She requested her to complete it. अब ये हर कहां से आया? यहाँ पे हमारे पास देखो she said to her है, तो यहाँ पे इसने क्या किया? said to हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? requested में। she requested her to complete it. Similarly next statement में देखते हैं, Hamid said to Ramit sit down. Hamid said to Ramit what? Sit down. अब किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो बोलते हैं sit down, stand up, ठीक है। तो all these are what? orders. तो उसी तरह से जब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये जो set to है in our this statement, this set to will be converted to what? ordered. तो हमारा देखो एग्जाम्पल में भी यही है, Hamid ordered Ramit to sit down. Hamid ordered Ramit what? To sit down. So this is how we change our sentences. Depends on कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में है, क्या वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोला गया है या फिर वो एक ऑर्डर किया गया है, ठीक है, या फिर डिमांड किया गया है। ओके, all these are what? All these are the types which we have to keep in mind. Now let's move forward to our next rule. It states what? नेक्स्ट रूल में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इंटरजेक्शंस। अब देखो एक्सप्रेस
क्या कर रहे हैं, या तो वो ग्रीफ एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉरो एक्सप्रेस कर सकते हैं, हैप्पीनेस या फिर अपलॉड एक्सप्रेस कर सकते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स जो किसी भी इमोशनल फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है. Exclamatory sentence that express interjections are removed and the sentence is changed into an assertive sentence. Assertive statements are what? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. ओके, तो जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो कि किसी भी किसको इंटरजेक्शंस को किसी भी फॉर्म में हमारे क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन यूज कर रहे हैं हम उसके बाद में, और किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी इमोशन को. इमोशन क्या है, इमोशन वहां पे ग्रीफ भी हो सकता है, सॉरो भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, ठीक है, क्राइम भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग जो किसी ना किसी फॉर्म, सैडनेस भी हो सकता है, ऑनेस्टी भी हो सकता है, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, दे आर रिमूव्ड. और जो सेंटेंस है हमारा, जैसे कि यहाँ पे है, उसे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक उस जो दैट विल बी अ नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे. लेट्स सी, यहाँ पे डायरेक्ट में देखो हमारे पास है शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अलास, एक्सक्लेमेटरी मार्क, I am done. अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सैड स्टेटमेंट. हम अलास कहाँ यूज करते हैं, अलास कहाँ यूज करते हैं, यूज इट फॉर अ नेगेटिव इमोशन. यूज इट फॉर व्हाट, वी यूज इट फॉर अ नेगेटिव इमोशन. दिस वी नो, हमने अपने चैप्टर में किया है. अब देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट में इट स्टेट्स शी सेड, alas I am undone. ठीक है, she said what, alas I am undone. This is what she said. अब जब हम उसको indirect में convert करेंगे तो हम उसको कैसे convert करेंगे, she exclaimed sadly that she was broke. अब हमने क्या किया, ये undone और इसको किस में convert कर दिया, she was ब्रोक में. तो whenever you will get any kind of exclamatory sentence जो किसी इमोशन को शो कर रहा है, स्पेसिफिकली सैड इमोशन को शो कर रहा है, बिकॉज सैड इमोशन को आप असर्टिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट इजीली कर पाते हो. तो जब आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा, यू हैव टू सी व्हाट, पहली चीज तो आपको एक और चीज इसमें याद रखनी है, शी सेड हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट हो जाता है. You have to keep this in mind. If you have this particular connotation, you have to convert it into, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है हमेशा, exclaimed. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना alas के आगे exclamatory mark. तो she exclaimed, how she exclaimed, sadly that she was broke. अब ये sadly हमने क्यों लगाया, because यहाँ पे हमारा expression कैसा है, sad. She exclaimed sadly that she was broke. As per the question analysis, these type of questions are quite rare. These type of questions are quite rare. Hardly you will get to see them, like हो गया 5-6 साल में एक आधी बार आ गया. That is the pattern of such questions. Because at that point of time, see what our syllabus holds. It states basic grammar portion. Okay. So in basic grammar, this is what these rules are for. Like आप इसको expect कर सकते हो, basic grammar तो नहीं है, it is intermediate. You can convert it into intermediate level. High level में हमको जाना भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एग्जाम क्लियर करने आए हैं. We are not here to be a barrister or something that particular subject. ठीक है, हमें उसमें डॉक्टरेट नहीं चाहिए. Now let's move forward to our rule number 8. Rule number 8 states what, कि अगर हमारे पास punctuations है, अब punctuations हम स्टार्टिंग से अब तक करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास punctuations है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे. तो conversion on the basis of punctuation. फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो what it states, in direct speech the words actually spoken should be in what, these quotes and always begin with a capital letter. अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिकॉग्नाइज करना हो तो आप कैसे करोगे, कि अगर हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अभी तक हमने उसके अंदर एक चीज कॉमन देखी, we have seen these. Okay, these are what, these are the quotation signs. ये हमारे डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, हमेशा रहेंगे. ठीक है, the direct statement will always be spoken in quotes, और उसका जो first letter होगा inside these, I'm not talking about outside these, the first letter of any statement is again capital. इसके अंदर जो first letter होगा that will also be capital. I am there. अगर ये हमारा होगा she said comma inverted comma I am there, so it will be she said comma inverted comma that she was there. Okay. So this is how you have to recognize
The next thing is full stop, comma और exclamation या question mark है. They are always placed inside what? Inside our closing inverted commas. हमेशा जो भी हमारा full stop या फिर comma या फिर exclamatory mark होगा वो हमेशा हम इन quotations के अंदर या फिर इसके अंदर या closing inverted commas से पहले लगाएंगे. Okay. Next thing it states is if direct speech comes after information about who is speaking, comma is used to introduce the speech. अगर direct speech तब आती है जब हम information बताते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं तो comma use करते हैं. For example, he shouted. यहाँ पे बात हो रही है किसकी? He is the person who is shouting. Comma, inverted comma. What he shouted? Shut up. Okay, so this is what whenever we have something like this जहाँ पे हम information provide कर रहे हैं कि कौन बोल रहा है, कौन उस particular statement को explain कर रहा है या फिर किसके बारे में है. ठीक है, जो वो फर्स्ट पर्सन है जो वो चीज बोल रहा है हमेशा डायरेक्ट में उसको कंसिडर करते हैं ना, उसी की लैंग्वेज में वो चीज बोलता है. तो जो भी पर्सन है जो बोल रहा है या इंफॉर्मेशन उसके बारे में है जो बोल रहा है उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? वी विल यूज दिस आवर फर्स्ट कॉमा देन आवर इन्वर्टेड कॉमा. ओके, दिस इज व्हाट वी डू. अब नेक्स्ट देखते हैं. Next is our rule number 9. Now rule number 9 is I'll consider it as one of the most important rule of this whole chapter because it tells you how to convert with respect to time. अब देखो time वाले questions कैसे आते हैं? Yesterday, tomorrow, today, this day. इस तरह के questions आएंगे. ठीक है, statement में आपके end में मिल जाएगा, आपको this day मिल जाएगा, today मिलेगा, tomorrow. These are the questions जो मतलब आपके regular statements के साथ add करके they give you such questions, so you can easily expect a question 1 or 2 from this. So what you have to do, I have given you some of the most important words over here, some of the most repeated words. Yeah, some of the most repeated words. तो यहाँ पे हमारा देखो जब हम direct to indirect करते हैं change with respect to time, so what we do, see, अब देखो यहाँ पे rule number 1 में it is written in direct speech the words that express nearness in time or place are changed to words that express distance in indirect. जो nearness मतलब लगभग के अराउंड बता रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम के अराउंड, एग्जैक्ट वो नहीं है, वो क्या शो करते हैं उसमें? डिस्टेंस में हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ. सी यहाँ पे देखो, अगर आपके पास स्टेटमेंट में नाउ है, जस्ट राइट देम डाउन एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है. यू हैव टू जस्ट राइट दीज कि अगर डायरेक्ट में हमारे पास में नाउ है, अगर indirect we have now तो indirect में that now will be converted to then. अगर direct में here है तो indirect में it will be converted to there. अगर direct में ago है तो यहाँ पे जब हम indirect में convert करेंगे before. Direct में हमारे पास statement में 10 है तो उसको हम किस में convert करेंगे? So you have to keep in mind these. Now will be converted to then. Here will be converted to there. Ago will be converted to before. 10 will be converted to so. टुडे है उसको हम किस में बना देंगे? दैट डे. इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस ये टुडे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में. टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस विल बिकम्स दैट. यस्टरडे द डे बिफोर, दीज विल बी कन्वर्टेड टू दोस. अगर हितर है, हितर विल बी कन्वर्टेड इनटू थितर. नेक्स्ट कम, कम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गो. सो दीज आर व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये किसकी बात हो रही है? अगर ये हमारे कौन से स्टेटमेंट के अंदर है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. ठीक है, अगर ये हमारे इसके अंदर आपको मिलेगा, कोटेशंस के अंदर ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको नाउ है, तो उसके बाद आप इनडायरेक्ट में उसको देन में कन्वर्ट करोगे. यू हैव टू कीप दिस वन थिंग आल्सो इन योर माइंड. सो यू कैन जस्ट राइट देम डाउन एज इट इज एंड यू हैव टू जस्ट लर्न देम. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, दे क्रिएट कंफ्यूजन कि टुडे का द नेक्स्ट डे तो नहीं हो जाएगा, यस्टरडे का द डे बिफोर हम कैसे लिखें कि दैट डे तो नहीं लिखना है. तो व्हाट दिस टुडे एंड यस्टरडे इज वेरी कॉमन. ये तो बहुत ज्यादा लाइक इट इज काइंड ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम. ठीक है, तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रिपीटेड फॉर्म में हमें दिखता ही है. टुडे बिकम्स दैट डे, यस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर. सो जस्ट कीप ऑल दीज इन माइंड. ओके, these are most important. I'll classify them into the most important part of this chapter. So you have to keep all this in mind. There is no need to go through any kind of lengthy topic or something because this is what इतना ही आएगा. इससे अलावा you cannot expect. और अगर इससे ज्यादा करोगे then it will be just a waste of your time.
So today we are winding up with our direct and indirect speech chapter. If you have any doubt with respect to this, please let me know. And tomorrow we will be solving questions of this particular chapter, as well as we will be solving one question paper of IBPS because the exam is near. That's all for today. And I'll see you guys tomorrow. Have a good day ahead.